Good morning, students. We are going to have our English session today, and as you know my name by now, I am Sabah Saifi Ahmed, and I am your English teacher. And today we are going to introduce you with a new topic in English literature, and that is figures of speech. Now, figures of speech, as you have heard it before, that there are parts of speech in language. When we speak a certain sentence, there are different parts of a sentence, and that is called the parts of speech. You already know about the 8 parts of speech, and that is nouns, pronouns, adverbs, verbs, adjectives, preposition, conjunction, etc., interjections. Though you are already aware of the 8 parts of speech, but that was in the language part. Now, since we are doing the literature part, we should be knowing about the figures of speech. Now, what are figures of speech? Figures of speech are actually different ways of expressing in literature. Actually, the poets, the writers, the big writers which we find in the English literature book, in your reader's book, you will find that the literary poets, the literary writers try to pen down their emotions and sentiments with the help of these weapons. So actually, figures of speech can be said as the different weapons which a writer, which a poet try to use in the literary piece to make it a masterpiece, so that their readers can get influenced by their writing. तो एक्चुअली में वो एक वेपन हुआ, फिगर स्पीच एक वेपन हुआ हमारे आर्टिस्ट के लिए, हमारे रीडर, हमारे राइटर्स, हमारे पोएट्स के लिए, जिससे उन्होंने अपनी एक छोटी सी बातों में गहराई डाल दी है. तो एक्चुअली ही इज़ ट्राइंग टू, द पोएट, द राइटर्स आर ट्राइंग टू मेक इट मोर मीनिंगफुल. अपने स्टोरी टेलिंग को, अपने नरेशन को, अपने लैंग्वेज को, अपने सेंट्रल आइडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में, बहुत ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस किया है बाय यूजिंग दीज वेपन्स. Now, how do they use these weapons? Now, जैसे जैसे हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, मैक्सिमम जनरली वी फाइंड दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इन लिटरेरी पोएम्स. एक्चुअली पोएम्स में ये ज़्यादा यूज होते हैं, बट येस वी डेफिनेटली फाइंड इन द इंग्लिश लिटरेचर स्टोरीज ऑल्सो. Now, since you have a lot of literary chapters, you will find that last time we were doing the chapters, the first chapter. I hope you all understood. But right now, I would like to tell you about the different figures of speech which we should be knowing as an English reader, as an English student. Since you all belong to a good school, so you should be knowing the different figures of speech used in a literary object. Okay. Now, the very first figure of speech I would like to tell you is the simile. Now, what is simile? Actually, the poet or the writer try to make their writings more effective, more emphatic, by writing down in such a way that the readers are going to admire it, that उनकी बातों में, उनकी राइटिंग्स में लगे कि हाँ, he has written something very standard. Similarly, जब अगर आप लोग का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है towards writing, तो I would like to suggest you to use these figures of speech, because ये एक वेपन है जिससे हम लोग अपने लिटरेरी एस्पेक्ट को, लिटरेरी क्रिएटिव आइडियाज़ को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं. Now, the very first one I will tell you is the simile. Now, what is simile? Simile is actually a direct comparison that is used between the two different objects. Now, दो objects के बीच में हम लोग similarity लाने की कोशिश करते हैं, एक comparison लाने की कोशिश करते हैं using the term like, as और so. तो जब हम लोग कोई दो ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर हम लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग लाइक और एज और सो, दिस विल बी सिमिले. ना हम लोग एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो जाएगा. तो आई थिंक आई शुड टेल यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ना एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिले आर, नंबर 1, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. ना लाइफ एक ड्रीम की तरह है. ना ये लाइफ आप अक्सर पढ़ते हो लिटरेरी बुक्स में कि किस तरह से लाइफ हम लोग का एक ड्रीम की तरह है. तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. नाउ व्हेन यू विल फाइंड दैट लाइफ इज कंपेयर टू अ ड्रीम. लाइफ को किससे कंपेयर किया गया है? एक ड्रीम से कंपेयर किया गया है. एंड उसको कैसे कंपेयर किया गया है? यूजिंग द डायरेक्ट कंपैरिजन लाइक. तो जहाँ पे लाइक यूज होता है, जहाँ पे एज यूज होता है, और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिमिले. अनदर एग्जाम्पल इज eyes as blue as the sky and deep like an ocean. जैसे अगर हम किसी गर्ल की ब्यूटी को मैं अगर डिफाइन करूँ कि हर आइज आर एज ब्लू एज अ स्काई, जिस तरह से स्काई ब्लू होता है वैसे उसकी आइज ब्लू है, तो उसकी स्काई की ब्लूइशनेस को मैंने कंपेयर किया है उसकी आइज के ब्लू कलर से. एंड सिमिलरली एज डीप एज एन ओशन.
जितनी गहराई उसके समुद्र के पानी में होती है, जितनी गहराई समुद्र में होती है, ओशन में होती है, सेम गहराई उसकी आंखों में भी दिखती है। तो एक्चुअली व्हाट इज अ पोएट ट्राइंग टू से, ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक हिज पोएम और मेक हिज लिटरेरी बुक राइटिंग्स मोर इफेक्टिव। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, उसका इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, उसको एविडेंट बनाने के लिए, उसको इम्फैक्टिक बनाने के लिए जो हमारे पोएट्स और राइटर्स हैं वो इस तरह के कंपैरिजन को यूज़ करते हैं। ना अगर आपको राइटिंग्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑल्सो मेक योर राइटिंग्स मोर ब्यूटीफुल इफ़ यू ट्राई टू यूज़ दिस वे। तो अगर आप भी सिमिली और मेटाफर और भी आगे चल के फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आई थिंक योर राइटिंग विल बी मोर स्टैंडर्ड। ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि सिमिली क्या होता है। सिमिली एक डायरेक्ट कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने आइज की ब्लूइशनेस को किससे कंपेयर किया है, स्काई के ब्लूइशनेस से, एंड उसके डेप्थ को कंपेयर किया गया है हम लोगों ने ओशन के डेप्थ से, उसकी आइज के डेप्थ को कंपेयर किया है ओशन के डेप्थ से। नाउ सेकंड वी विल कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एंड दैट इज द मेटाफर। नाउ मेटाफर इज सेम एज द सिमिली, बट इसका एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे लाइक एज या सो नहीं यूज होता है, बट स्टिल हम लोग दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज और सो। तो मेटाफर होता है एक ऐसा इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट जहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्टली। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बताएं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। वी ऑल नो दैट कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, बट इसका यहाँ पर कहने का ये मतलब हुआ कि जिस तरह से कैमल जिस तरह से शिप समुद्र में पाए रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, सिमिलरली कैमल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, कैमल को कंपेयर किया है किस व्हीकल से, किससे कंपेयर किया हम लोगों ने, शिप से। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लाइक एज यूज नहीं किया, आई हैव कंपेयर्ड द कैमल विद द शिप बट आई हैव नॉट यूज लाइक और एज। ये इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे, मेटाफर। क्या कहेंगे, मेटाफर। अगेन अनदर एग्जांपल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लायन ऑफ इंडिया। ना उनको लायन माना जाता है बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वाज वेरी फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा फियरलेस थे लायन की तरह। तो उनके क्वालिटीज़ को लायन की क्वालिटीज़ से कंपेयर किया है। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, ही वाज नॉट लायन, ऑफ कोर्स ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसके फियरफुलनेस जो है, जो जिस तरह से निडर थे हमारे सरदार पटेल, जिस तरह से बहुत ज़्यादा करेजियस थे, सेम वे उनका करेजियसनेस, उनका बोल्डनेस, उनका स्ट्रेंथ, उनका पावर, उनका जो स्टैमिना है वो कंपेयर किया गया किसके बोलनेस से, लायन के बोलनेस से, लायन के रोरिंग नेचर से, लायन के दहाड़ने से। तो एक्चुअली मैं एज कंपेयर सरदार पटेल विद द लायन, तो उनके क्वालिटीज़, लायन की क्वालिटीज़ को मैंने कंपेयर किया है सरदार की क्वालिटीज़ से। तो अगेन आई हैव नॉट यूज द वर्ड लाइक और एज, बट स्टिल देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन, दैट इज वल्लभ भाई पटेल एंड लायन। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, आई होप यू ऑल आर क्लियर बाय नाउ। सिमिली में है डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग द लेटर, using the word like or as, and in metaphor there is no direct comparison, there is only indirect comparison in which we find that like or as is not used. Now we will come to the third one and that is personification. Personification is also a very important figure of speech जिससे हम लोग अपने स्टोरी लाइन को, हम लोग अपने पोएट्री लाइन को, पोएट्री मीनिंग को, लिटरेरी पोएम्स को और बेहतर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा दमदार बना सकते हैं, एविडेंट बना सकते हैं। Again I will use the word emphatic, effective, very beautiful, very extraordinary बना सकते हैं। तो how, what is personification? Personification होता है जब हम लोग किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, जैसे अगर कोई सामान है, कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको एक क्वालिटी दे देंगे ह्यूमन का, तो वो क्या हो जाएगा, ये किस तरह का कंपैरिजन है। यहाँ पे मैंने लाइक या एज नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी देयर इज अ कंपैरिजन जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को मैंने लिविंग थिंग्स के कंपैरिजन से की क्वालिटी से मैंने कंपेयर किया, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ना जैसे व्हेन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट आर गिवन द ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस जो है वो हम लोग का बेस्ट टीचर, जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ें, वैसे वैसे वो हमें सिखाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो आवर बेस्ट टीचर इज द एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इज ऑफ कोर्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको पता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बट यस
हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने कंपेयर किया है टीचर से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैंने कंपेयर किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉन ह्यूमन को मैंने कंपेयर किया है एक ह्यूमन क्वालिटी से। तो दैट इज व्हाई दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ द सेकंड वन, द लाई हैज नो लेग्स। लाई मतलब झूठ, लाई मतलब यहाँ पे क्या हुआ, झूठ। झूठ का कोई पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से फैलता है। यू ऑल नो दैट, है ना, इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाई हैज नो लेग्स बट स्टिल इट विल रन लाइक टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। जिस तरह से स्पीड ऑफ लाइट फैलते हैं, एक सेकेंड में कितनी दूरियां कवर कर लेता है, सेम वे अ लाई हैज अ मल्टीप्लाई इफेक्ट। अ लाई हैज ट्रिमेंडस, इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये समझने चाह रहे हैं कि लाई को, झूठ को, मतलब अगेन वी कैन नॉट फील दैट। झूठ को हम लोग झूठ को हम लोग देख नहीं सकते बट ओनली फील कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट सी अ लाई, वी कैन नॉट टच लाई, बट यस वी कैन फील लाई। तो लाई क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको मैंने कंपेयर किया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उसके पास पैर होते हैं। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लाई के पास पैर नहीं है, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज इट स्प्रेड्स लाइक a person who is running, like an animal who is running. So actually I am comparing the lie, which is a non-living object, to living object, and that is human like quality मैंने उसे दिया। Now इसके अलावा I will come to the third one. So up till now I hope you got it. What is simile? This is a direct comparison using the letter like, as, or so. This is a metaphor where indirect comparison without using like or as. And personification में क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आपने कंपेयर किया है लिविंग ऑब्जेक्ट से, उसे आपने दिया है एक ह्यूमन क्वालिटी दिया है, नॉन ह्यूमन को एक ह्यूमन क्वालिटी देना। नाउ आई होप देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू विल फाइंड इन द पोएम्स, इन द स्टोरीज। तो जैसे जैसे मैं स्टोरीज पढ़ाऊंगी आप लोगों को, यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ सिमिलीज, अ लॉट ऑफ मेटाफर। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको एक बैकग्राउंड स्टडी दे दूँ, एक ब्रीफ स्टडी दे दूँ अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ एक्चुअली लिटरेरी वर्क, how actually a poet or a writer or a good writer, a good person, good writing skills, a person who is having good writing skill, how he manages to attract the readers, किस तरह से वो अपने readers को अपनी तरफ खींचता है by using these weapons। तो ये एक weapon है हमारे writers के लिए। Now next one will come to the third one, fourth one we are coming to, and that is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration क्या होता है? Alliteration एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे एक कॉन्सोनेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। You see repeating the same consonants again, repeating same consonants again and again. For instance, अगर आप एग्जाम्पल बताओ, जैसे एग्जाम्पल है ब्रिंग मी द बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे क्या होगा, मेरे लिए बॉइलिंग वाटर मेरे लिए लेके आओ। यहाँ पे बी इज बीइंग रिपीटेड, सी द लेटर्स कॉन्सोनेंट आर बीइंग, द कॉन्सोनेंट डी ब इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आप ले सकते हो शी chattered and chattered। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि शी कंटिन्यूसली स्पीकिंग। चैटर्ड एंड चैटर्ड मतलब वो कंटिन्यूसली बोल रही है, कंटिन्यूसली बातें कर रही है। इन स्पाइट ऑफ बी सेड नॉट टू टॉक, स्टिल शी इज टॉकिंग। बट यहाँ पे द लेटर सी एच एंड सी एच इज बीइंग रिपीटेड। तो आप नोटिस कीजिएगा जब आपका कॉन्सोनेंट्स बार बार रिपीट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, alliteration। Now very important I would like to tell you is whatever I am teaching, please maintain a copy for yourself, an English copy. I would like to want you to maintain only one English copy. In that English copy
आपको सारे एक लैंग्वेज के होंगे, एक लिटरेचर के होंगे. दिस इज ऑफ कोर्स योर बेसिक नॉलेज यू शुड बी हैविंग, एंड इन दिस यू शुड बी नोइंग दैट आपको एक जो भी लिटरेचर के बारे में मैं पढ़ाऊँ तो उसको आपने मेंशन नोट डाउन किया हो. सी आई हैव टॉक टू यू अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्लीज़ मेंटेन दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइन, ताकि आप इसको नोटिस कर याद रखो. और ये दिस विल कंटिन्यू टू बी स्टडी, बिकॉज ये ख़त्म नहीं होंगे. ये क्लास 7 में भी, अभी आप 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में, व्हाटएवर, यू शुड बी नोइंग दीज. ओके, बिकॉज ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच यू कैन गो फर्दर. ओके, ना नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओनोमेटोपोइया. Now, what is onomatopoeia? Now, what is onomatopoeia? Onomatopoeia is actually the sound effect. Okay, sound effect. Now, किसी भी साउंड का लिटरेरी पोएम में या राइटिंग में साउंड का आ जाना, एक ऐसा वर्ड जो साउंड को डिस्क्राइब करे, जो साउंड के बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट द बेस्ट एग्जांपल आई विल गिव यू. द बजिंग साउंड. The buzzing bee flew away. Now buzzing माने why the bee always buzz. So this is a sound create. ये sound effect है. तो ये कौन सा figure of speech यूज हुआ है? Onomatopoeia. Another example I will tell you. The hustle and bustle. Okay. तो hustle and bustle क्या है? आवाजें करना. The hustle and bustle of the city. Okay, the hustle and bustle of the city. इसके अलावा और भी साउंड है. The gushing sound of river. Now gushing. Okay, so all these tells you about the different voice, different sound that is coming of a particular object. एक particular object का sound होना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? Sound effect create करना, इसको क्या कहेंगे? Onomatopoeia. Okay. By now we have come across 5 figure of speech. पहला था simile, उसके बाद metaphor, फिर then personification, then alliteration, then onomatopoeia, and last we will come to the 6th one. And what is that? I hope you all are enjoying. Okay. Last we will come to hyperbole. Now what is hyperbole? Now कोई भी सेंटेंस में जब हम लोग कुछ एग्जैजरेशन करते हैं, एग्जैजरेशन मतलब कुछ चीज़ों का आगे बढ़ाना, ज़रूरत से ज़्यादा उसको फैलाना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेशन. तो एक्चुअली hyperbole is another very common use figure. We simply translate it exaggeration. कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, किसी भी चीज़ को बढ़ा के कहना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेशन. ओके, नाउ आई होप बाय नाउ यू आर अवेयर व्हाट इज एग्जैजरेशन. नाउ उस पर हम लोग एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल्स हैं जैसे आपका द बेस्ट एग्जांपल यू विल कम टू दैट इज saw at a glance. Got it? ना इसका मतलब हुआ कि 10,000 times I have seen. अब जाहिर सी बात हम लोग 10,000 तो देखेंगे नहीं. तो दिस इज अ वे ऑफ सेइंग, जहाँ पे कोई चीज़ को एग्जैजरेट करना.
That is called hyperbole. Okay. Another example है 1,000 times I have said. 100 times I have repeated. Now अगर मैं कहूँगी 100 times for the word 100 time I'm telling you please do this, please do that. तो ये सब क्या हुआ, एक तरह का एग्जैजरेशन हुआ जहाँ पे हम लोग सेंटेंस को एग्जैजरेट करें, जाहिर सी हम लोग 100 टाइम्स तो नहीं कहेंगे. तो दिस इज अ वे ऑफ सेइंग. तो डिड यू सी हाउ द literary writers and poets try to make their writings more, try to improve their writing skills? How did they actually attract the readers mind? तो readers mind को अगर अट्रैक्ट करना है तो वो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को, वेपन्स को यूज़ करेंगे ताकि उनका राइटिंग स्किल्स और बेहतर हो जाएगा. नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, since I am your English teacher, as we move forward, we will come across all these figure of speech which we have studied up till now. तो जैसे जैसे हम हमारे क्लासेस होंगे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स, पोइट्रीज, क्वेश्चन आंसर्स, तो यू हैव टू राइट अबाउट दीज फिगर ऑफ स्पीच. अगर वो उस चैप्टर में है फिगर ऑफ स्पीच तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू find out and try to write it in the copy. Okay, I hope my first class on this figure of speech is clear to you, and I hope that you all will cooperate in the class, in this virtual class. So please try to write down in your copy. Okay, if you are not understanding, you can repeat the video again and you can make things easily understood. Okay, now I would like to also suggest you that this English session was very important, because as you move from one class to another, you are going to find these things again and again, till as long as you are studying literature as your primary subject, as your main subject, you are going to find these topics again and again. Now I would thank you so much for cooperating. I hope the class was much interesting for you. Thank you so much.